Morning, all students. I hope you have the good health and stay at home to the protection and the control of the coronavirus, so that the college which are organized to the online teaching classes, I am provide to the different kinds of the topics of the BSc second year which are related to the physiology, and we studied to the continuously lectures of the physiology, in which to the digestive system, their physiology, and after that to the respiration and physiology of the respiration, which so that I will start today now to the topic which are confined, which are related and that concern to the topic of the respiration, physiology of the respiration, in which we just teach today, and we just try to understand about to the what is the procedure in going during to the physiology of the respiration. In the previous lecture we just mentioned that about to the physiology of respiration, in which to the breathing mechanism which are have to the two phases, inspiration and expiration, along with to the going into the expandation and formation, or the which are have to the cavities, the lungs cavities also increases with the help of to the intercostal muscles, which that is to the external and the internal, and diaphragm as well, so that the formation of to the increases to the volume, and that to the which are of the volume, the O2 and CO2 will go in and outside through the mechanism. So now today we'll start in the process of that is the rest of part of the physiology of the respiration is the gaseous exchange. The process of gaseous exchange. So that we just try to understand to today topic what is the gaseous exchange. The gases which are transported. Gases goes to the inside the tissue, goes in the cytoplasm, and go forward to the physiological processes, so that to the process of the gaseous exchange. What is the gaseous exchange? As you mentioned in the previous lecture, to the end. In the successive lectures, we are just started from to the respiration. In the respiration, 5 phases, in which to the first of all to the lung ventilation, after that to the diffusion of the gases of lungs to alveoli of the lungs to the blood capillaries, and after that to the transportation mechanism along with the hemoglobin of the blood, and each carries to the inside the cell, inside the cytoplasm of the cell, through the takes place to the diffusion process, and this process which are allowed to the these kinds of the ions molecules and the gases. So that here we are just now going to the process of the gaseous exchange, in which to the O2 and CO2. Why are whose are the process? What will the procedure is going on to the oxygen from to the environment to the inside, and after the metabolism to the CO2 which are gone or expired from the lungs to the outer side.
तो आज के चैप्टर में हम ये देखेंगे कि गैसेस एक्सचेंज की प्रक्रिया, गैसेस के स्थानांतरण की प्रक्रिया, गैस एक्सचेंज कैसे हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को आप देखेंगे। उसके अंतर्गत अब हमने पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में आपको ये बताया कि गैसेस एक्सचेंज की प्रक्रिया 2 जगह पे होती है और उस 2 जगह के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे है जहां सेल के अंदर या एल्वेलाई से ब्लड से होते हुए वो ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म से होता हुआ वो सेल में पहुंचेगा। तो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज की प्रक्रिया होती है। गैसेस एक्सचेंज की प्रक्रिया क्यों होती है, कैसे होती है, तो इसको जानते हैं। तो ये प्रोसेस गैसेस एक्सचेंज में हमने एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया है कि गैसेस जो होते हैं वो पिछले लेक्चर के अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस लेक्चर, व्हेन द एयर प्रेशर विल बी और the air pressure which go to the greater than or the less than in comparison to the outer side or the inside। यहाँ पे समझना ये है कि जो गैसेस एक्सचेंज की प्रक्रिया है वो कहाँ पे होती है। हम 2 लाइन पढ़ते हैं, उसके हिसाब से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। Gas process of the gases exchange, the exchange of the respiratory gases O2 and CO2 occurs in between to the inspiration and expiration, which means that to the both of this is the breathing mechanism. Breathing mechanism have to the expiration and expiration, so that to the gases exchange which are occurred, which are take place are occupied during this time in between to the inspiration and the expiration. The O2 will go now inside and CO2 which are expired out from the lungs. So that is the first line in the exchange of the respiratory gases O2 and CO2 occurs in between to the inspiration and expiration. तो यहाँ पे एक्सपायरेशन और एक्सपायरेशन की प्रक्रिया के दौरान जो है गैसेस एक्सचेंज की प्रक्रिया होती है और उसमें क्या होता है, इंटरचेंज होता है। और इस इंटरचेंज की प्रक्रिया टेक प्लेस होती है बिटवीन टू द ब्लड इन टू द कैपिलरी नेटवर्क विच सराउंडिंग टू द एल्वेलाइज एंड द एयर इन द लंग्स ऑफ द एल्वेलाई। यहाँ पे इंटरचेंज की प्रक्रिया हो रही है। इंटरचेंज का मतलब स्थानांतरण हो रहा है, बदलाव हो रहा है। गैसेस जो है मोमेंट में जाके ट्रैवल कर रही है थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस, जिसमें वो ब्लड कैपिलरी नेटवर्क में जा रही है, जो ब्लड कैपिलरी नेटवर्क है वो सराउंड की जाती है एल्वेलाइज के द्वारा। यहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि जो लंग्स होता है वो हाईली वस्कुलाइज्ड स्ट्रक्चर है, कैपिलरीज बहुत ज्यादा मात्रा में होती हैं, वेसल्स कैपिलरीज जो बोलते हैं, आर्टरीज एंड द वेसल्स, बिकॉज यहाँ पे क्या होना है, डिफ्यूजन प्रोसेस होना है, गैसेस एक्सचेंज की प्रक्रिया होनी है। और फॉर द गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस डन बाई थ्रू दिस टाइप ऑफ द मैकेनिज्म, so that this is the essential for that to the highly vascularization, and these are the capillaries which are surrounded by to the alveoli. Alveoli is the principal chief parts of the lungs which have to the oxygen and the CO2 during this process, so that first of all we are just take to when the time of the scene the interchange of the gases from to the alveoli to the blood capillaries and the blood capillaries to the alveoli। यहाँ पे हमको समझना है कि गैसेस एक्सचेंज की जो प्रक्रिया होती है या की जाती है फिजियोलॉजी के दौरान, उसमें हम ये देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जबकि एल्वेलाइज में पहुंचेगा तो मैंने जैसे पहले बताया कि वो जो हमारा लंग्स होता है वो हाईली वस्कुलराइज्ड है, वहाँ पे कैपिलरीज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं क्योंकि वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होना है, और गैसेस एक्सचेंज होने के लिए जो है वहाँ पे कैपिलरी का होना बहुत एसेंशियल है। तो कैपिलरी को जो है जो एल्वेलाइज होती है वो सराउंड की रहती है, या कहें कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और क्योंकि हम इंस्पायरेशन की प्रक्रिया में O2 को वो एनवायरनमेंट से ग्रहण करते हैं, विच रिसीव टू द O2 फ्रॉम द एनवायरनमेंट गोज थ्रू द नेजल पैसेजवे इन द पार्ट्स ऑफ द लंग्स दैट इज कॉल्ड to the alveoli, and in the alveolar sac to the amount of the oxygen which are carried,
So here to the gaseous exchange, first is the oxygen go in the capillary of the blood. ब्लड के कैपिलरीज में, ब्लड की जो कैपिलरीज वहां पाई जाती है, वहां पे एक्सचेंज की प्रक्रिया होगी, तो वहां पे कैसे होगी, तो उसको वहां पे हम देखेंगे कि जो एयर का पार्शियल प्रेशर होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द एयर इन कंपैरिजन और इन बिटवीन टू द एल्वोलाई ऑफ द लंग्स एंड द कैपिलरी ऑफ द ब्लड। एल्वोलाई ऑफ द लंग्स, जो हमारा एल्वोलाई है और जो हमारा वहां पे लंग्स का जो कैपिलरीज होती है, जो ब्लड की कैपिलरीज होती है, उनके बीच में इंटरचेंज की प्रक्रिया हो रही है, तो इसलिए विच आर वन टू दैट to a partial pressure, where the partial pressure is in the high, that molecule we are just mentioned and described was to the previous lecture, where the partial pressure is takes place during the inspiration and the expiration. The oxygen which are have to the after the expansion of the lungs, that is the partial pressure is go now into the below in comparison to the external environment, so that the oxygen along with the air is goes inside to the lungs, and that process after the formation of, after the doing to the metabolic activities inside the cytoplasm of the cell, that release to the CO2 which can say that about to the oxygen which are joined to the carbon and form to the CO2. That CO2 along with the are carried by the once again to the blood, and their plasma goes through the same processes, same systems through the blood capillaries in the alveoli of the lungs. Once again gaseous exchange takes place, and that's to the expired out to the mechanical process, that's like to the breathing mechanism. तो यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर को हम देखेंगे, और उस पार्शियल प्रेशर के आधार पे ही हम यहाँ पे उन सब चीज़ों को समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, CO2 कहाँ पे ज़्यादा है, CO2 कहाँ पे कम है। उसी के अकॉर्डिंग्स में, उसी के दौरान हम ये कह सकते हैं कि वो ऑक्सीजन और CO2 का यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज की प्रक्रिया हो रही है। तो हमने यहाँ पे लिखा था, बोला आपको कि एक्सचेंज ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस अकर इन बिटवीन द इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ड्यूरिंग दिस टाइम द इंटरचेंज टेक्स प्लेस in between to the lungs of the alveoli into the capillaries, and the capillaries to the alveoli of the lungs, so that in the better clarification and the justification for that to the understanding for the convenient study and better understanding which are going now to the level of description. During to the breathing is the mechanical process in which where the two times of the gases exchanges takes place, where are the gases exchange interchangeable mechanism which are going on, and that's to the during the breathing gases always gaseous gases are the ions are the molecules which are tend and have to the tendency which are goes to the along with the pressure. यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये आपको मेंशन किया था कि वहाँ से वो टेंड का मतलब होता है प्रवृत्ति रखना। गैसेस जो है प्रवृत्ति रखती हैं कि जहाँ पे उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वो हायर से लोअर की तरफ जाएंगी। तो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज की प्रक्रिया उसी के दौरान होती है, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ बहुत ही जरूरी है कि वहाँ पे पार्शियल प्रेशर का पाया जाना, प्रेशर का होना। हम आपको आगे समझाते हैं। ड्यूरिंग ब्रीदिंग गैसेस ऑलवेज टेंड टू द डिफ्यूज फ्रॉम द हाई पार्शियल प्रेशर to the low partial pressure. As we mentioned that in the previous lecture, there are the diffusion process. In the diffusion, particularly simple diffusion, that is the types of the passive diffusion which are which not allow to the any kinds of the metabolic energy. That means to the at that time there are no consumption of the energy, and only through the simple diffusion gases
across to the plasma membrane of the cell and go inside in the cytoplasm to the required for that to the mechanism or the processes for the survival. So go now, that is just mentioned in the diffusion process, higher to lower. Ions or molecules are the gases which are goes to the region of the higher concentration to the region of the lower concentration along with the movement के साथ में वो हायर से लोअर की तरफ चलते हैं। तो उसका यहाँ पे देखिए कि ये हाई पार्शियल प्रेशर, तो कंसंट्रेशन या पार्शियल गैसेस का प्रेशर देखा जाता है, तो वहाँ पे उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और उसका कंपैरिजन किया जाएगा उसके अगले क्षेत्र में, अगले रीजन में, अगले स्पेसिस में जहाँ से वो कन्फाइंड है, जहाँ से वो कनेक्ट है, जहाँ से उसका कंसर्न है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे कि वो जो पार्शियल प्रेशर है वो कहाँ पे हाई है और कहाँ पे कम है। हाई पार्शियल प्रेशर टू द लो पार्शियल प्रेशर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज it means the partial pressure where are the higher to the gases which are go now, gases which tend to the go forward, so that the O2 has a higher partial pressure in the alveolar air than the blood, and the O2 diffuse into the blood, whereas the CO2 has the higher partial pressure in the blood in alveolar air than the CO2 diffuse into the alveolar. हम इसको आपको समझाते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से क्या है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि डिफ्यूजन के दौरान ही जो है गैसेस एक्सचेंज की भी प्रक्रिया होगी। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि गैसेस एक्सचेंज की जो प्रक्रिया हो रही है या होती है, तो उसमें कहाँ पर किसका, कहाँ पर CO2 का, कहाँ पर O2 का पार्शियल प्रेशर है, वो कौन सा रीजन है, कौन सा स्थान है जहाँ से वो मूव कर रही है। जैसा मैंने पहले भी बताया, तो हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट टू द थ्रू द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और द डिमॉन्स्ट्रेशन here to the there are the two reasons we are just mention here. First is the lungs and lungs alveoli, and the second is the blood capillary. They are the two reasons, blood capillary, and another one is the lung alveoli. First of all, which you are just go now, and when the time of the inspiration, which intake the fresh air, intake the oxygen from the environment through the nasal passageway, go inside to the parts of the lung, that is called to the alveoli, alveolar sac which are the alveoli. So that reason is indicating by me, that reason is the alveoli of the lungs or the lungs alveoli. So first गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, गैसेस एक्सचेंज की प्रक्रिया कहाँ पे सबसे पहले हो रही है, लंग्स एल्वोलाई टू ब्लड कैपिलरी. वी आर जस्ट मेंशन टू द ब्लड कैपिलरीज इज सराउंड बाय द एल्वोलाई, या विच मीन्स टू द एल्वोलाई इज पार्ट ऑफ द लंग्स एंड द लंग्स इज हैव टू द highly vascularized in nature, and it means that to the blood capillaries more and more. So to lungs alveoli, the blood capillary. अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि दो रीजन है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज की प्रक्रिया होगी, और इन दो रीजन में गैसेस एक्सचेंज की प्रक्रिया तभी होगी जबकि वहाँ पे पार्शियल प्रेशर में डिफरेंसेस आएगा. जब तक डिफरेंस नहीं होगा, जब तक कंसंट्रेशन में अंतर नहीं होगा, तब तक जो है मूवमेंट नहीं होगा. इक्वलाइजेशन होने के लिए लंग्स की इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन की प्रक्रिया तभी हो सकती है जबकि पार्शियल प्रेशर में अंतर हो. गैसेस के पार्शियल प्रेशर में अंतर होना बहुत जरूरी है. दिस इज अ वेरी एसेंशियल मैंडेटरी फॉर दैट टू डिफरेंसेस विच आर अकर्ड, डिफरेंसेस विच आर कैरिड आउट in between to the both of the regions, and gases which take to the. अब हम सबसे पहले इंस्पायरेशन की प्रक्रिया में के लिए समझते हैं कि इंस्पायरेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें किसका पार्शियल प्रेशर कहाँ पे ज्यादा होता है.
तो आप समझें दो रीजन को मैंने बताया, एक लंग्स एल्वोलाई को मैंने रिप्रेजेंट किया, एक ब्लड कैपिलरीज को रिप्रेजेंट किया, जो कि उसी रीजन में पाए जाते हैं, क्योंकि आपने सेकंड फेज में समझा है कि वहां पे गैसेस एक्सचेंज की प्रक्रिया होती है, और गैसेस एक्सचेंज की प्रक्रिया तभी हो सकती है जो जहां पे डिफ्यूजन होता है, लेकिन डिफ्यूजन हो पे कहाँ रहा है, एल्वोलाई ऑफ द लंग्स से कैपिलरी ऑफ द ब्लड के कैपिलरी में हो रहा है, और यहाँ पे डिफ्यूजन के हिसाब से इक्वलाइजेशन की प्रक्रिया तभी होगी, इंस्पायरेशन की प्रक्रिया तभी होगी जबकि वो डिफरेंस को कंटेन करता हो, डिफरेंस को रखता हो, डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता हो, डिफरेंस को वहां पे दिखाता हो कि किस प्रकार का अंतर है कि जिसके आधार पे वो ऑक्सीजन या CO2 जो है वहां से मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम इंस्पायरेशन के दौरान समझ लेते हैं कि ऑक्सीजन, तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे PO2 लिखा है और यहाँ पर PO2 लिखा है, तो आपको बता देना चाहते हैं P का रिप्रेजेंटेशन है, P इज इंडिकेटिंग टू द पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर और किसका, O2 ऑक्सीजन का, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन कहां पर, इन द लंग एल्वोलाई और एल्वोलाई ऑफ द लंग्स, और इसका जो यूनिट होता है, एयर का जो यूनिट होता है, जो लंग्स और कैपिलरीज में मेजर किया जाता है, हर चीज की यूनिट होती है और उस यूनिट के हिसाब से उसको हम मेजरमेंट करते हैं और वहां पे डिस्क्रिप्शन में उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो उसके आधार पे हम यहाँ पे कहते हैं कि PO2 द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन द लंग्स एल्वोलाई इज हायर देन टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ब्लड कैपिलरी, which are the partial differences of the oxygen from to the lungs alveoli to the blood capillary। यहाँ पे देखें कि पार्शियल ऑक्सीजन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, यहाँ पे लिखे 100 मिलीमीटर Hg, दिस इज द यूनिट मिलीमीटर Hg, पारे में इसको नापा जाता है, जिसमें यहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर किसका, ऑक्सीजन का, इंस्पायरेशन के दौरान, ड्यूरिंग टू द इंस्पायरेशन व्हेन द ऑक्सीजन which goes to the oxygen go now to the process of the diffusion, which in the higher amount, which are the higher concentration, the partial pressure of the oxygen is higher in the lungs alveoli, so that the gases is 10, oxygen is 10 to the go another side where the partial pressure is low, so that अब मैंने कहा कि गैसेस एक्सचेंज की प्रक्रिया आपको पहले भी मैंने मेंशन कर दिया है कि वो कहां पे जाएगा, ब्लड एल्वोलाइज में जाएगा। तो देखें PO2 कहां से जा रहा है, ब्लड कैपिलरी में जा रहा है, और मैंने सबसे पहले मेंशन किया है कि कहां पे पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे देखें 100 मिलीमीटर Hg है, जबकि ब्लड कैपिलरीज में देखेंगे 40 मिलीमीटर Hg है। तो टोटल डिफरेंसेस विच आर अकर्ड इन बिटवीन टू द लंग्स एल्वोलाई टू द ब्लड कैपिलरीज, तो 100 millimeter Hg in the region of the lungs alveoli, and where are the 40 millimeter Hg in the blood capillary, so that here to the partial differences of the oxygen in the, from to the lungs alveoli to the blood capillaries is a 60 millimeter Hg. तो 60 millimeter Hg of the partial differences of the lungs alveoli of the blood of the oxygen in comparison to the blood capillaries of the in the blood capillaries of the partial pressure of the oxygen। मतलब सामान्यतः ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंस हमें मिला वो 60 मिलीमीटर Hg का मिला, और इसी 60 मिलीमीटर Hg के डिफरेंस के माध्यम से जो लंग्स एल्वोलाई में जो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से आया है, इकट्ठा हुआ है, वहाँ पे रिस्टोर हुआ है, रहता है, वो इसी पार्शियल जो 60 पार्शियल मिलीमीटर Hg है उसी के माध्यम से कहाँ पे आएगा, जहाँ पे ब्लड कैपिलरीज है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 मिलीमीटर Hg है, तो हमने इसको माइनस किया यहाँ पे और यहाँ में प्राप्त हुआ ये। तो इस पार्शियल प्रेशर के दौरान तो सो दैट वी हैव टू द 60 millimeter Hg partial differences in between to the lungs alveoli and the blood capillaries, so that the oxygen will tend to go in the blood। तो ब्लड में वहां पे गैसेस एक्सचेंज की प्रक्रिया हो जाती है। ये तो मैंने इंस्पायरेशन के टाइम में बताया, इंस्पायरेशन के लिए बताया, और एक्सपायरेशन मैकेनिज्म के दौरान ये यहां से यहां पे
ट्रांसपोर्ट हो जाती है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, मूवमेंट में चली जाती है, और यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज की प्रक्रिया हो जाती है थ्रू द डिफ्यूजन। अब हम बात करें एक्सपायरेशन के लिए, गैसेस एक्सचेंज की प्रक्रिया हो रही है, तो गैसेस एक्सचेंज की प्रक्रिया साइमल्टेनियस होती है, एक साथ में होती है, लगातार चलती रहती है ऑक्सीजन थ्रू। तो उसी के दौरान अब हम देखते हैं, देखिए दूसरा एक एरो तो हमने लगाया था इसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, दूसरा एरो देखिए दोनों रीजन से कनेक्ट हुआ है इस एरो के दौरान। तो यहाँ पे देखिए बोथ ऑफ द रीजन वंस अगेन टू द appear in front of you on the whiteboard, so that once again to the lungs alveoli and another one is the blood capillary, so that both of the reasons which are have to the some of the partial differences once again for the CO2 and the CO2 tend to the go now to the another one। तो यहाँ देखें कि अब हमें क्या करना है, O2 जैसे ही पहुँचता है किसी भी टिश्यूज में, वहाँ पे ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होगी, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होगी। आफ्टर द मेटाबॉलिज्म CO2 आर द रिलीज, CO2 विच आर फॉर्म, एंड देन दीज आर द expired air, that is the used air through the this kinds of the mechanism, which means that the gases exchange and the transportation of the gases। तो यहाँ पे हम ब्लड कैपिलरी से लेंगे, क्योंकि वहाँ से जो आप हमारी टिश्यूज है वहाँ पे जो कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, उसको क्या करती है, कैरी करती है थ्रू द ब्लड। ब्लड में मतलब कह सकते हैं कि ब्लड इसको CO2 को फिर से कैरी करेगा, और हम आगे के लेक्चर में भी बताएंगे कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म होता है। तो कैरी करता है, और जब तो कैरी करेगा तो अब मैंने पहले भी मेंशन किया कि ये कुछ न कुछ पार्शियल प्रेशर को कंटेन करेगा। तो यहाँ पे देखें कि पार्शियल प्रेशर कितना है, फिर से PCO2 एंड PCO2 यहाँ पर लिखा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2, बोथ ऑफ द रीजन ब्लड कैपिलरी विच आर हैव टू द 46 millimeter Hg and the lungs alveoli to the 40 millimeter Hg, so that in the region 46 millimeter Hg minus 40, so that we are just found to the 6 millimeter Hg। तो that is the differences of the both of the regions, so that the carbon dioxide of the blood capillaries go the lungs alveoli through the blood in the expiration mechanism, in which here to the region of the blood capillaries that have to the 6 millimeter Hg, and the lungs alveoli, the partial pressure of the CO2 is the 40 millimeter, so that we are just found to the 6 millimeter Hg, the total differences, so that to the CO2 tend and have to the have to the tendencies go now through the for the expiration through the blood ऑफ द बॉडी, मतलब बाहर वो निकल जाएगा। तो ये आपने डायग्राम के माध्यम से और पार्शियल डिफरेंसेस हमने यहाँ पे शो किया, उसके माध्यम से आपने दोनों के ऑक्सीजन के और CO2 के रीजन को समझते हुए गैसेस एक्सचेंज की प्रक्रिया कैसे होती है, हाउ इज द मैकेनिज्म विच आर परफॉर्म विल परफॉर्म फॉर दैट टू द गैसेस एक्सचेंज इज द टेक्स प्लेस, सो दैट इज द ड्यूरिंग दिस सेंटेंसेस विल it means that to the where are the partial pressure of the oxygen is higher, go now to the lower, so that the lungs alveoli which are have to the higher oxygen higher partial pressure than the partial pressure of the oxygen in the blood capillaries, whereas to the CO2 in the CO2 for the expiration, that is in the blood capillaries which are have to the little bit higher than the lungs alveoli in the 6 millimeter Hg, so that to the these of the gases goes now their destination for the spontaneous process and respectively. So we are just trying to understand about to the
what is the process of the gases exchange in which the gases will go now their destination, go now in the physiology, where are the recommendation of the gases and the formation of the other things, so that here, तो हमने यहाँ पे ये समझा कि किस प्रकार से गैसेस एक्सचेंज की प्रक्रिया हो रही है और गैसेस एक्सचेंज की प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, इसको हमने ग्राफिक्स के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से डिफरेंसेस को शो करते हुए, रीजन्स को शो करते हुए आपको हमने क्लियर किया। अब गैसेस एक्सचेंज के होने के बाद हम ये देखेंगे कि ये जो गैसेस एक्सचेंज हो गए, गैसेस एक्सचेंज की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर लिए, द गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन दिस प्रोसेसेस सो दैट द गैसेस विल गो नाउ, the gases going on in the process of the transportation, so that another that is the which are just think about to the during the first lecture we are just discussed to the third phase is the transportation of the gases, which means that to the O2 and CO2 which goes now into the transportation through the plasma and the capsules, through the blood particularly which have to the plasma and the capsules. तो हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेस की बात करेंगे। अब तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेस में हम O2 और CO2 को देखेंगे कि O2 और CO2 किस प्रकार से जब कैरी कर लिया जाता है, गैसेस एक्सचेंज की प्रक्रिया हो जाती है, तो ब्लड उसको कैसे टिश्यू, मतलब ब्लड कैपिलरीज से टिश्यू और टिश्यू से ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से लंग से होता हुआ कैसे बाहर निकल जाता है, इन सब चीजों पर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं, लेट अस सी हियर देयर इज अनदर हेड to the transport of the gases. In the process of the transportation of the gases, the O2 will go now in the tissues for the oxidation through the blood, and the blood which are carries about. But we just understand what the total amount of the oxygen will carry by the hemoglobin or not, or the what is the percentage of the oxygen which contained by the plasma or not, or whose the mechanism is participate for the completion of to the transportation mechanism for the oxygen. So just to let us consider that in the process of to the transportation of the mechanism, तो पहले प्रोसेस में हम देखेंगे कि ऑक्सीजन जो इंस्पायरेशन मैकेनिज्म में एल्वलाई तक पहुंचा, और एल्वलाई के बाद जो है गैसेस एक्सचेंज की प्रक्रिया हुई, ब्लड कैपिलरीज में गई, मतलब ब्लड को में कैरी की गई। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ब्लड इज द ब्लड जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। ब्लड इज द स्टडीड इन द हेड्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, because the blood is the medium which are have to the all the nutrient wastage and the all enzymes, hormones and the other things is go inside and outside the are the any kinds of the destination or the cells or the place where the recommendation where the required for the body, so that which are have, so in which to the blood is contain to the oxygen and the CO2 for the different processes. First is in the inspiration, the oxygen will contain through the blood through the hemoglobin. लेकिन आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे ब्लड का जो सामान्यतः फॉर्मेशन होता है, ब्लड इज द फॉर्म टू द basic element is the plasma and the capsules which are suspended in the plasma, so that the plasma is the basic substance, the fundament for the fundamental fluids for the recognition of the blood, so that to the plasma and the capsules. यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि ब्लड में जो पार्ट्स हैं, ब्लड के जो भाग हैं जिनसे मिलके वो बना है, तो क्या प्लाज्मा भी भाग लेता है, क्या केवल कैप्सूल्स जो पर्टिकुलरली आरबीसी के अंतर्गत हीमोग्लोबिन होता है वो केवल भाग लेता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन द प्लाज्मा
physical solution which only to carry about to the 3%, only 3% of the oxygen carry about by the plasma. प्लाज्मा के माध्यम से 3% जो ऑक्सीजन होता है उसमें घुल के डिफ्यूज होता है, ट्रांसपोर्ट होता है और वो किसी भी टिश्यूज में पहुंचाया जाता है। लेकिन 97 parts of the oxygen will go now into the transportation mechanism through the blood is approximately 97% through the parts of the RBC is called to the hemoglobin, and that's the hemoglobin combined with the oxygen which called to the oxyhemoglobin. तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्म में जो ब्लड होता है, ब्लड और ऑक्सीजन वो उसको कैरी करके ले जाता है। मतलब यहाँ पे देखें, द हीमोग्लोबिन एंड द ऑक्सीजन विल गो नाउ इन द प्रोसेस एंड कंबाइन टू ईच अदर, कंबाइन and then form to the oxyhemoglobin. That's have to the 4 in number, both of the hemoglobin and the oxygen, and that's to the 4 HbO2, which means that the oxyhemoglobin. So formation of the oxyhemoglobin along with the hemoglobin, and तो यहाँ पे 97% of the hemoglobin which carried about to the O2 and the rest of the part which means that 3% is through the plasma in the tissue. तो यहाँ पे आपने देखा कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्म में ये जो हमने यहाँ पे इंडिकेट किया है 4 HbO2 के माध्यम से वो ट्रांसपोर्ट होके टिश्यूज में पहुँचता है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में भाग लेता है और ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में भाग लेके वहाँ पे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को पूरा करके जो भी जहाँ पर भी जैसे भी बॉडी रिकमेंड करती है, वह चाहती है, जस्ट व्हाट यू वांट टू दैट अबाउट टू द व्हाट काइंड्स ऑफ द प्रोसेसेस, हु इज द मटेरियल फॉर द सिंथेसिस एंड द प्रोडक्शन, व्हाट विल बी go now and required that to direct it. तो यहाँ पे आपने देखा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के अंतर्गत यहाँ पे ऑक्सीजन जो है बेसिकली रूप से हीमोग्लोबिन के माध्यम से। तो आप जानते हैं, हम थोड़ा सा यहाँ चर्चा कर लें, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता दें जल्दी से। तो हीमोग्लोबिन जो है आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन बोला जाता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना है, हीम एंड ग्लोबिन, दो चीजें हो गई। अब हीम जो होता है वो आयरन से बना होता है और ग्लोबुलिन जो होता है वो प्रोटीन होता है। तो आपने दो चीजें पाई, ये आयरन एंड प्रोटीन। ये जब डिग्रेड होता है तो प्रोटीन जो है वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में बाइल जूस से होता हुआ डाइजेस्टिव ग्लैंड से रिलेट करके एक स्टीरियरी मटेरियल के रूप में बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब डिग्रेडेशन में ये आयरन जो होता है वो वंस अगेन यूज कर लिया जाता है फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। मतलब ये कह सकते हैं कि ये दो चीजों से मिलके बना है। अब हमको ये देखना है कि कैसे कैसे कैरी करता है। तो जब हम एक सामान्य स्ट्रक्चर देखेंगे हीमोग्लोबिन का तो उसमें पाएंगे कि हीमोग्लोबिन जो है वो टेट्रापायरल रिंग के माध्यम से इस प्रकार से, जैसे मैंने यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये 4 है, इसलिए टेट्रापायरल रिंग है इनके बीच में, और इनके साथ में ये दोनों तरफ बोथ ऑफ द साइड यहाँ पे अल्फा एंड बीटा करके प्रोटीन्स होती हैं जो कि सम ऑफ द नंबर्स में होते हैं 141 एंड 146। अब दो साइड में इसलिए वो 2 कर देते हैं हम इंटू 2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना संख्या में प्रोटीन। तो यहाँ पे देखें हमने क्या लिखा है, हीम और ग्लोबिन। तो हीम एंड ग्लोबिन अल्फा एंड बीटा के फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे जो ये 4 आयरन एटम है यहीं से ये बाइंड करता है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन एनहाइड्रस बॉन्ड के रूप में यहाँ पे बाइंड कर लेता है और जाके किसी भी टिश्यूज में ऑक्सीजन को छोड़ देता है, मतलब लेफ्ट आउट कर देगा जहाँ पे उसकी जरूरत है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए। तो आपने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म में इस प्रकार से बाइंडिंग करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हुए वो टिश्यू में पहुंचाता है। और उसके बाद अब देखें
तो मैंने कहा कि मेटाबॉलिज्म होगा, ऑक्सीडेशन होगा, केमिकल प्रोसेसेस होंगी प्रोडक्शन के लिए, किसी न्यू सिंथेसिस के लिए, मतलब यहाँ पे एनर्जी निकलती है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस एनर्जी निकलेगी और वो एनर्जी किसी दूसरे सिंथेटिक प्रोसेस के लिए या किसी अन्य चीज़ों के लिए यूज होगी। तो जबकि ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म आफ्टर द फॉर्मेशन, आफ्टर द ड्यूरिंग टू द मेटाबॉलिज्म, the CO2 will form after the joining of the O2 through this process. O2 के जुड़ने के बाद ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होने के बाद जो मेटाबॉलिक प्रक्रिया होती है उससे CO2 निकलेगा और वो CO2 कैसे बना है, जो ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो डिग्रेडेशन होता है, जो चीज़ें टूटती है, खासकर कार्बनिक जो चीज़ें होती है उसमें कार्बन होता है, तो कार्बन से उसका रिलेशन करके, कार्बन से एसोसिएशन करके, कार्बन से वो जुड़ के वो CO2 का फॉर्मेशन कर लेती है। और जैसा मैंने कहा कि CO2 इज द एक्सक्रीटरी मटेरियल के फॉर्म में निकलेगा, वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में लिखेगा, चाहे वो गैसेस के फॉर्म में हो, तो उसके गैसेस फॉर्म के लिए हमने ब्लड के माध्यम से लंग एलवाई से होता हुआ वो एक्सपायर्ड किया जाएगा एक्सपायरेशन मैकेनिज्म में। तो हम चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म के दौरान यहाँ पे दूसरे प्रोसेस में, तो दूसरे प्रोसेस में होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेस में, यहाँ पे लिखा था मैंने ट्रांसपोर्ट ऑफ द O2 थ्रू द ब्लड, अब होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ द CO2। तो उसमें CO2 जो है ट्रांसपोर्ट होने में जबकि कब बन रहा है, सेल में जो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म हो रही है, जो भी केमिकल रिएक्शन होने के बाद वहां से CO2 निकल रहा है। अब वो कैसे आपके लंग सेल वालाई ब्लड के माध्यम से लंग एलवाई से पहुंचेगा और एक्सपायर्ड होगा। तो वहां पे यहाँ इसमें डिफरेंशिएशन है, मतलब कई स्टेप में होगा, वो स्टेप को देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कि बाई फिजिकल सोल्यूशन, मतलब जैसे मैंने देखा कि ऑक्सीजन जो है 3% प्लाज्मा के माध्यम से पहुंच रहा था, ठीक उसी प्रकार से जो CO2 है वो प्लाज्मा से जुड़ के, प्लाज्मा में जो O2 वाटर है उसके साथ में कॉम्बिनेशन करके कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा H2CO3, मतलब CO2 plus H2O which will form to the H2CO3, that is called to the carbonic acid, and that carbonic acid will go now through the expiration mechanism. So ये कार्बोनिक एसिड जो है ये बॉडी में बनेगा, तो ये भी किसी न किसी चैनल के माध्यम से बॉडी से एक्सक्रीट होगा। ये यहाँ पे लिखा गया है बाई फिजिकल सोल्यूशन, मतलब वही भौतिक जो मटेरियल है, जो प्लाज्मा है, उसी की बात की जा रही है। तो देखिए CO2 जो बना है ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, H2O जो उसका पार्ट है प्लाज्मा का, उसके साथ कॉम्बिनेशन करके कार्बोनिक एसिड बनाया H2CO3 फॉर्म में। तो ये पहला है, और उसका जो परसेंटेज है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द एक्सक्रीटरी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ द कार्बोनिक एसिड इज द 5%. After that, the 10% of the CO2 will go now through the expiration by chemical compound. तो केमिकल कंपाउंड में भी एक दो मैकेनिज्म है। तो पहले मैकेनिज्म में देखते हैं कि ये जो ब्लड है, जो इसमें हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन के साथ में अमीनो ग्रुप जुड़ा है, तो अमीनो ग्रुप के साथ में ये कॉम्बिनेशन कर लेगा, तो CO2 plus Hb plus NH2, this is the amino group, this is the hemoglobin and the carbon dioxide. After the production of the carbon dioxide during to the metabolism, which are joined to the hemoglobin, which carried about to the amino group, and that form to the carbo-amino hemoglobin, carbo-amino hemoglobin. तो क्या बन रहा है, CO2 plus Hb NH2 which are going to the formation of the Hb NS COO. One is the COOH. Sorry for that, here to the indicating just to the COOH, because just go now into the in the balance Hb and H and H2, then the one hydrogen is goes to or combination with the carbon dioxide and formed of the carboxylic group. So that is the carbo-amino hemoglobin. तो 10% इस कार्बो-हीमो-अमीनोग्लोबिन के माध्यम से वो बॉडी से बाहर निकलता है, उसके रूप में निकलता है। और सबसे महत्वपूर्ण रेस्ट ऑफ द, मतलब 85% ऑफ द
CO2 will go now in the process of the respiration, that is as a bicarbonate. बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में वो निकलता है, जो 80% पूरी संख्या है इसकी, परसेंटेज है इसकी, और वो देखिए CO2 जो निकला है, H2O जो कि हमने पहले रिप्रेजेंटेड बाइकार्बोनेट्स के रूप में, ये कार्बोनिक एसिड के रूप में दिखाया है। लेकिन हम जब इसका डिसोसिएशन करेंगे तो डिसोसिएट करेंगे तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और ये मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना, उसमें टूट जाएगा, तो H++H CO3 माइनस, दैट इज द in the form of the bicarbonate is gone out. तो which just आपने देखा कि ऑक्सीजन और CO2 with the chemical combination, with the chemical reactions go now in the tissue, and from the tissue is the outer side in the various methods, various compounds. सो अब यहाँ पे आपने ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म को देखा। ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म के तहत जो है आपने पूरी प्रक्रिया को देखा कि किस प्रकार से ऑक्सीजन और CO2 जो है अंदर और अंदर इन द सेंस कि टिश्यूज में जा रहा है और वहाँ टिश्यू से ऑक्सीजन CO2 जो है वो इसके थ्रू आ रहा है। तो ये था गैसेस एक्सचेंज की प्रक्रिया और ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया। अब इसके बाद यही जो है जाके वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होगी और लगातार प्रोडक्शन एनर्जी का होगा, नए थिंग्स की होगी जिसकी जो ज़रूरत है बॉडी की आवश्यकता के हिसाब से, और पूरी की जो पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज जो है कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं लंग्स कैपेसिटी की तरफ। तो लंग्स कैपेसिटी के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से जो लंग्स है कैपेसिटी होती है उसको हम यहाँ पे देखने का प्रयास करें। We just see the transportation of the gases from to the lungs alveoli to the blood, and the blood to the lungs alveoli for the inspiration and expiration, so that we will go now to the another chapter today, the gases exchange and the capacity of lungs. So in the first of all formation of the capacity through the lungs volume. The lungs volume, what is the lungs volume? The lungs volume, and the lungs volume form during to the numbers of the efforts from the expiration, inspiration, the rest of the time, or the continuous time, or the continuous process. So that there are the numbers of processes which have to the numbers of the volumes of the lungs. So go now to the explain to the first of all for the formation of the capacity of the lungs to know about what is the lungs volume. Lungs volume is the volume where are the in the time of the during inspiration, expiration, in the normal respiration, or the rest of the gases which are presented already in the lungs, there are the no loss or the gain. So that these are the 4 types of lungs volume are found during to the processes: normal breathing, normal expiration. So that we'll go now to the topics is the lungs volume, tidal volume. This is the tidal volume. Tidal volume is those volume in which to the air breathe in and out. Air breathe in and out during to the normal respiration. During to the normal respiration, air breathe and out. मतलब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की प्रक्रिया जबकि एकदम सामान्य हो, नॉर्मल हो, जब हम नॉर्मल होते हैं, कोई भी एनिमल्स नॉर्मल ब्रीदिंग मैकेनिज्म कर रहा है, तो उस समय जो ऑक्सीजन ले रहा है और जितना ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहा है, उन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो वो जो वॉल्यूम बनता है वो टाइडल वॉल्यूम, जिसको टीबी बोलते हैं, और ये अप्रॉक्सीमेटली 500 ml के आसपास जो है एनिमल्स के माध्यम से एनिमल्स में माना जाता है कि ये 500 ml जो एयर होगा उसको ब्रीथ इन एंड आउटसाइड करेगा। तो वी आर गो नाउ टू द अनदर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब आप देखें सेकंड में इन द सेकंड प्रोसेस
to the inspiratory reserve volume, which are in the short form to the IRB. Inspiratory मतलब inspiration. During to the inspiration mechanism, whose the amount of the air which are forcefully breathed in the lungs. जबकि इंस्पायरेशन के समय, ऑक्सीजन लेने के समय जितना एक बार में हम फोर्सफुली तरीके से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं, रख लेते हैं, मतलब लंग्स के वॉल्यूम में भर लेते हैं, जैसा कि आपने इंस्पायरेशन मैकेनिज्म में लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ते देखा है, उस समय जितना एयर, दैट इज द एनिमल्स कैन ब्रीथ द एयर इन द नॉर्मल रेस्पिरेशन, ब्रीथ फोर्सफुली in the one time, that have to the 2000 to 300 ml that represent to the inspiratory reserve volume is the IRB. उसको IRB inspiratory reserve volume बोलते हैं, जबकि हम लोग जो है मैक्सिमम अमाउंट में एयर उस समय ब्रीथ करते हैं, मैक्सिमम एफर्ट करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि हमारा अगला वॉल्यूम लंग्स का रिप्रेजेंट करेगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब देखिए ये एक्सपायरेशन से रिलेटेड है। जैसे इंस्पायरेशन में कि हम इंस्पायरेशन के दौरान जितना एयर ब्रीथ कर रहे थे, अब जस्ट रिवर्स है, जस्ट अपोजिट सेंस है कि जितना एयर हम जो है एक्सपायरेशन के टाइम में बाहर निकाल देते हैं लंग्स के माध्यम से, लंग्स के बाहर, तो वो हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है ERB, और अप्रोक्सीमेटली 1000 ml which are expired in the maximum effort, in the once effort. And finally we are go now to the residual volume, the rest part of the volume where are no not at all which are vacant, the lungs never to the empty through the lungs, empty of the air. लंग्स कभी भी एयर से खाली नहीं रहता है, और जब इन सब प्रक्रियाओं के बाद इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन और नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम के अलावा जितना एयर कंटिन्यूअस या फिर हमेशा ऑलरेडी आपके लंग्स में रहता है, उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, जो कि अबाउट 12 ml के आसपास पाया जाता है। तो एग्रीगेट आपने देखा कि ये जो वॉल्यूम है वो विभिन्न प्रकार के, विभिन्न स्टेप्स में, विभिन्न एफर्ट्स में हम उसको कंटेन करते हैं, और आफ्टर दैट टू द along with the 4 types of the volume that form to the capacity of the lungs which are mixing, lungs of the adjoined to the different numbers of the expiratory, inspiratory, reserve and the tidal volume. So go now into the lungs capacity. To first of all, inspiratory capacity, which in denoted by IC, inspiratory. अब आप यहाँ पे जानिए इंस्पायरेटरी। अब आपने लंग्स में देखा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है TB प्लस IRB। TB का मतलब नॉर्मल रेस्पिरेशन, इन एंड आउट, इन एंड आउट टाइम में नॉर्मल ब्रीदिंग में जितने ml हम ले रहे हैं वो, और IRB इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो और एक मैक्सिमम एफर्ट में एक बार में जितना एयर हम एक बार में ले लेते हैं उसको, तो दोनों को शामिल कर दिया जा रहा है। तो देखिए IB कितना है आपका, TB 500 प्लस ये कितना, अगर हम मैक्सिमम वाला ले लेते हैं तो देखेंगे 3500 ml जो है हमें एक बार में प्राप्त होता है। किसके माध्यम से, हमारी जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होते हैं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी TB मतलब टाइडल वॉल्यूम और IRB मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को शामिल करके बनाई जाती है या लंग्स कैरी करता है। सेकेंड वन में जाते हैं, कैपेसिटी के अंतर्गत फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इन द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इन द मैक्सिमम एफर्ट द ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन,